Hello everyone, this is Jasmine Das and welcome to my channel अनपढ़। अपना टारगेट यही है कि टुकड़ों में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। So today in this video we are going to discuss about the metamorphic rock which is the third most important rock। अपने आप में ही बहुत यूनिक रॉक है ये। The word metamorphic has come from the Greek word metamorphism which means change in the form। So न तो ये इग्नियस रॉक की तरह लावा से बनता है और न ही सेडिमेंट्री रॉक की तरह सेडिमेंट से बनता है। So metamorphic rocks are formed on the pre-existing rocks due to the change in mineral composition and texture under intense heat and pressure, जिसको हम process of metamorphism भी कहते हैं। प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मतलब ये है कि जो भी रॉक पहले से मौजूद है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से भी बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकता है और मेटामॉर्फिक रॉक से भी बन सकता है, बस बनने के कंडीशंस चाहिए। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी ए लाइमस्टोन व्हिच इज अ सेडिमेंट्री रॉक इज मेटामॉर्फोज्ड टू द मार्बल एंड मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक व्हिच इज मच हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लाइमस्टोन। अब देखेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक बनता कैसे है। सो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। और वीडियो की इतनी दिक्कत है कि अभी पिक्चर बहुत स्लो में और थोड़ी देर के बाद ही आएगी। प्रोसेस समझने से पहले एक वर्ड समझ लेते हैं, प्रोटोलिथ। PROTILITH। प्रोटो का मतलब है फर्स्ट। सो वी से मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ए चेंज और अल्टरेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटोलिथ। मतलब पहले बनने वाले रॉक जो कि इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंटरी भी हो सकता है और मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। Here in this picture, blue arrow is showing the increase in pressure downward and this red arrow is showing the increase in temperature. Here the direction is wrong because temperature भी अंदर की तरफ ही बढ़ता है। Here a low grade sedimentary shale slowly metamorphosed to high grade migmatite metamorphic rock। अब जैसे हमने प्रोटोलिथ के बारे में जाना, जो कि एक पहले रॉक को हम प्रोटोलिथ कहते हैं, वैसे ही हम कुछ और वर्ड्स को जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल रीमेटामॉर्फोज्ड। सो दिस हैपन व्हेन ऑलरेडी फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर अगेन मेटामॉर्फोज्ड। सो उस प्रोसेस को रीमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब एक मेटामॉर्फिक रॉक जब समय के साथ हीट और प्रेशर के वजह से फिर से मेटामॉर्फोज्ड हो जाता है। So this is a process of remetamorphism. Next word is intense metamorphism. This happens when the rocks are metamorphosed to the greatest intensity. मतलब हल्के प्रेशर और हल्के हीट की बात नहीं हो रही है। Intense heat and intense pressure के चलते a rock is undergone through intense metamorphism process. Dharwarian sedimentary rock of peninsular India have suffered intense metamorphism. This is a very good example. Now let's see the change in the forms of rocks takes place in two ways. मतलब हीट और प्रेशर की वजह से रॉक्स के किस प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। एक तो होता है फिजिकल मेटामॉर्फिज्म, जो कि रॉक के टेक्सचर या तो उसके पार्टिकल्स पे असर डालता है, और दूसरा होता है केमिकल मेटामॉर्फिज्म, जो कि उसके केमिकल कंपोजिशन या तो मिनरल कंपोजिशन पे असर डालते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मेटामॉर्फिज्म इज स्मॉल क्रिस्टलाइज्ड लाइमस्टोन metamorphosed to large-sized marble, and in the chemical metamorphism, either the pre-existing minerals are changed their forms or new minerals added. Under the process of metamorphism, rock is so intensely metamorphosed that it is difficult to recognize the original rock. This was the first characteristic of metamorphic rock. Second characteristic is foliation. The word foliation has come from the Latin word folia, which means leaves, मतलब पत्ते. So this is about the repetitive layers like structure we found in the metamorphic rock. Though marble is a non-foliated rock, where we don't see any foliation. Now the next characteristic is fissility, means the tendency of split or parting ways from the bedding plane. अब धीरे धीरे जब पिक्चर आएंगे तब पता चल जाएगा कि कैसे ये सब दिखता है।
So fizzleity is something which looks like this, the picture in the bottom. Now let's see the agents which are helping in the formation of metamorphic rocks. अब सेडिमेंटरी में हमने काफ़ी कुछ जियोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में जाने, जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर हो गया, ये सब. बट इन मेटामॉर्फिक रॉक, but in case of metamorphic rock, the agents are not really visible, but they are very much active. 3 बहुत ही important agents हैं. पहला heat, next pressure, और third one is solution. These 3 agents are equally important, so just don't see the sequence. Intense heat can entirely change the mineral composition, and this heat is available during the volcanicity when hot and molten magmas ascend through the crustal rocks. हमारे एस्ट्रोस्फीयर यानी कि मेंटल में हमेशा मैग्मा रहता है. तो जब भी किसी नेचुरल रीजन की वजह से ये ऊपर की तरफ आते हैं, तब अपने सराउंडिंग रॉक्स को गर्म करते हैं, और ड्यू टू दिस इंटेंस हीट ये जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में, यानी कि जो पुराने जो रॉक्स होते हैं उसमें, तो उनमें बदलाव आते हैं. एंड दिस इज हाउ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड. नाउ सेकेंड इज प्रेशर एंड कंप्रेशन. तो कंप्रेशन तब होता है जब कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट के दौरान फोल्ड्स बनते हैं. So there you can see a change in the parent rock. और कंप्रेशन के साथ प्रेशर भी होता है. जब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, वैसे ही लेयर बनते जाएंगे, तब नीचे की तरफ there is a vertical pressure created. And with time they change the characteristics of the parent or the pre-existing rocks. Now the third one is the solution. ये जो मैग्मा होते हैं ये उन्हीं के साथ ही आते हैं. So this is known as magmatic water, or these are chemically active hot gases and water. So when they pass through the rock, they change their chemical composition. So these 3 are the main reason when a parent or pre-existing rock introduced to a change in the form, texture, mineral composition, etc. अब जैसे मैंने कहा था थोड़े वीडियो में थोड़ी दिक्कत है. एक अच्छा सा पिक्चर है मेटामॉर्फिक रॉक का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि द हीट फ्रॉम द इंटीरियर मैग्मा एंड द प्रेशर फ्रॉम द एबोव, दे आर फॉर्मिंग द मेटामॉर्फिक रॉक इन द मिडल. डाउट है तो कमेंट में बताइएगा. टाइप एंड क्लासिफिकेशन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो नाउ इट्स टाइम टू लीव. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, like and subscribe my channel as a token of motivation. Stay healthy, stay happy. Bye.